Roji, we are going to study constructors. Yes. तो जी हमारा सिलेबस खत्म हो गया। Yes. तो जी फंक्शन तो 5 चैप्टर है ना, तो ये क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, ये सब क्या है? वो सब जो हमने पढ़ा है उसी को डिस्क्राइब किया गया है उसमें। अच्छा, क्लास एज ए बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जावा में जितने भी प्रोग्राम बनते हैं सब क्लास के अंदर बनते हैं। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अ क्लास, देन यू कैन राइट एनी कोडिंग। तो जी तो इसमें मतलब कोई कोडिंग तो नहीं होगा ना भाई, ऐसे थ्योरी टाइप का होगा ये? हाँ, वो थ्योरी है। अच्छा ठीक है। इस बुक में ज्यादातर थ्योरी ही है। Okay, so what is a constructor? Constructor is a method. Okay, constructor is a method, but it is a special method. Why it is special? Because एंड कोड it has same name as the class. Okay, for example, if you create any class, so let's say class sum, so this is your class, and then you have written a data variable, taken a member data member int a and int b. These are your members, and then let's say you have created a method. So method, let's say, is int sum. Now this sum is small, so this name is different from the class name. Okay, Yes. so here I प्लस written as, now we sum, then return a plus b. Okay, so it will return a plus b. I have declared this. So these are data members. This is a member method. Okay, so what is the type of it member? This member method, this will return an integer value. I have written here int, so it means that it will return an integer value. And will it receive any value? Will it receive any value? क्या ये कोई वैल्यू रिसीव करेगा? जस्ट जी ए की और बी की नहीं, ये कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो आर्गुमेंट में देखो कोई भी फॉर्मल पैरामीटर नहीं है, वॉइड है, वॉइड है ना, तो ये कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा। ओके, प्रभु जी मतलब अगर रिसीव कराना हो तो क्या क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे तुमको कोई फॉर्मल वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, फॉर्मूला जैसे int a इस ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ओके, जिसकी वैल्यू चाहिए वो देने पड़ेगी। so this is your method, this is called member method. Okay, now constructor is a special type of method which has the same name as a class. So for constructor
you don't need to write any return types. You simply write the name of the class sum, okay, and then this is the bracket, and then inside parenthesis, another use of constructor is that it is used to initialize the instance variables. These are called instance variables or class variables, okay. So it is used. So how do you initialize? Let's say inside I write a is equal to 5 and b is equal to 2. Okay, you can also write a is equal to 0, b is equal to 0. So to initialize the value. So now this is a constructor. SUM, this is a constructor. Now what is the use of constructor? Constructor is used to initialize the variables in a class. Initialize the variables of a class. और जी इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल बता दीजिए क्या होता है? I'll tell. So these are called instance variables. Instance variables मतलब जो हम क्लास के अंदर जिन variables को define करते हैं, they are called instance variables. Okay, और local variables कौन से होते हैं? जो जिन variables को हम किसी मेथड के अंदर लिखते हैं, जैसे ये सम एक मेथड है, इसके अंदर अगर मैंने लिखा int x, तो x तुम्हारा x इज अ लोकल वेरिएबल. ये वेरिएबल जो है केवल इस मेथड के अंदर वैलिड है. ओके, अच्छा, तो दिस इज नॉट वैलिड इन एनी अदर मेथड. दिस इज वैलिड ओनली इन दिस. क्योंकि मेंबर मेथड और रिटर्न के बीच में लिख दिया ना हमने. अब वो तो क्योंकि हमने इसको इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है. सम नाम का मेथड है. This is small s, this is capital S. So this is a normal method and this is a constructor. Constructor में दूसरी बात, constructor में you cannot perform any other function except initialization. Constructor में केवल initialization हो सकता है. Okay, constructor में और कोई operation नहीं हो सकता. जैसे हम लोग method बनाते हैं factorial का और sum का method बनाते हैं, multiplication का, तो ये सब constructor में नहीं हो सकता. कंस्ट्रक्टर में केवल इनिशियलाइजेशन हो सकता है. इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर मेथड, डाटा मेंबर्स. so this was first thing, only initialization. okay, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन होता है. सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती है. ओके, नो नीड ऑफ रिटर्न टाइप. इसका मतलब है जी अगर हमें कोई डेटा को रिटर्न करवाना है तो उसे हमें दोबारा लिखना पड़ेगा अलग जगह पे. मतलब डेटा को जो वो जैसे कंस्ट्रक्टर में तो केवल इनिशियलाइजेशन होता है ना, और तो कुछ काम होगा नहीं, तो तुमको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. जो भी तुम वैल्यू डालोगे कंस्ट्रक्टर को, जब भी कॉल करोगे तो वो इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू को. इतना कर सकता है, वो ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है. इट डज नॉट रिक्वायर अ रिटर्न स्टेटमेंट. We'll see by the example. We'll see from the example. Okay, so this was the first thing. Second thing and third thing is that constructor has the same name as its class. Okay, constructor has same name as its class. जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का नाम होता है, उसी क्लास के नाम पे उसका नाम होता है. तभी हम, जैसे अगर हमने लिखा सम, इस क्लास सम के अंदर ये मेथड है सम, तो क्योंकि इसका नाम सेम है तो पहचान जाओगे कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. ओके, अब देखो कंस्ट्रक्टर यूज कैसे होता है. ऑब्जेक्ट बनाना सभी को आता है. जैसे अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट? ob dot sum is equals to new sum. डॉट कहाँ आ जाएगा? दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. sum dot ob is equals to new. अरे इतने प्रोग्राम बना लिए, अभी तक नहीं आया.
सम अच्छा। डॉट क्यों लगेगा? सम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना हो, ओ, मान लो ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा ओ, देन न्यू न्यू सम। सम, बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब तो देखो जी आपने मुझे आपने ये बताया था, जैसे अगर मैंने सम के आगे अगर जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट इन लिखा होता तो कुछ और बन जाता, मतलब क्या बन जाता होगा? सिस्टम डॉट इन इज यूज्ड ओनली इन स्कैनर ऑब्जेक्ट। जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और कुछ इनपुट तुमको लेना होता है, तब सिस्टम डॉट इन लिखते हैं। ओके, यदि सिस्टम डॉट आउट लिखते तो क्या? कुछ नहीं। सिस्टम तो डॉट बाहर जाता है ना, फिर हम जो इनपुट करते हैं वो प्रिंट होता। हाँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन में हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, आउटपुट। सो नाउ यू सी दिस सम, ये जो सम है ये क्या है? क्लास नेम, ठीक है, दिस इज योर क्लास नेम, दिस इज योर ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नाम। न्यू, न्यू इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये जो न्यू तुमने यूज किया है, ये किसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा? सम ये के लिए। सम के सम लिए। के लिए। ओ के लिए, ओ के लिए, ओ के लिए। सम का जो ओ के लिए ऑब्जेक्ट है प्रतीक। उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस बनाएगा, रिजर्व करेगा। अब ये जो सम है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ये देख रहे हो, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ओके, इट मींस दैट दिस इज अ मेथड, बट दिस इज अ स्पेशल मेथड बिकॉज इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नाम है वही इसका नाम है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास? कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर है? ऑब्जेक्ट ओ का, हाँ, सम का, सम क्लास का, हाँ, सम क्लास का, सम क्लास का। क्लास का कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। अब जब ये तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे, मतलब प्रजी जो क्लास के अंदर जो हम वर्डिंग यूज करते हैं, वो जैसे हम मैथ के अंदर अगर स्क्वाड यूज करते हैं तो स्क्वाड कंस्ट्रक्टर है मैथ क्लास का। नहीं, स्क्वाड, देखो मैथ कंस्ट्रक्टर की पहली पहचान क्या होती है? उसका नाम क्लास के नाम पे होना चाहिए, ये पहली पहचान है। ओके, तो मैथ क्लास का नाम है मैथ, तो एसक्यूआरटी का नाम तो मैथ से मैच नहीं कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो मेथड है। अच्छा, समझे? ये डिफरेंस है, मेथड और कंस्ट्रक्टर में ये डिफरेंस है। मैंने पहले बताया कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। स्पेशल टाइप क्या है? कि उसका नाम उसके क्लास के नाम पे होता है और वो कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, खाली इनिशियलाइजेशन कर सकता है। तो एसक्यूआरटी तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, एसक्यूआरटी क्या करता है? तो जी मैं तो जी स्क्वायर रूट निकालता है स्क्वायर वो। रूट निकाल देता है। निकालता है। तो कंस्ट्रक्टर तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, कंस्ट्रक्टर कैन ओनली इनिशियलाइज वैल्यू। ओके, मतलब बस वैल्यू को लिख सकता है। बस वो ए और बी को वैल्यू, इनिशियल वैल्यू असाइन कर सकता है। समझ में आया? पहली वैल्यू। हाँ, पहली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जितनी बार वो कॉल होगा। अब ये मान लो हमने यहाँ पे दे दिया int a इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे दे दिया b इज इक्वल टू 8, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ। तो अब जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है, ये तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका, फिर न्यू, फिर सम, ये कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो a को फिर से क्या कर देगा? 5 और b को क्या कर देगा? 2। मतलब प्रोजी जो सम है वो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा 5 और 2 ही वैल्यू रखेगा। जो तुम वैल्यू यहाँ पे दोगे, यहाँ पे अगर तुम 0 वैल्यू इनिशियलाइज करोगे तो 0 0 दे देगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है प्रोजी। सो अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, int a int b लिखा, तो a इज इक्वल टू 5 कर देगा, b इज इक्वल टू 2 कर देगा। इज इट क्लियर? जी प्रोजी। हाँ, अब नाउ व्हेन यू विल कॉल दिस function, this is a method,
sum, क्योंकि इसका नाम small s है. So this is a method. So how will you call? You will write o dot sum. O dot sum, और इसमें कोई भी हमको पैरामीटर नहीं भेजना है. तो o डॉट सम जब कॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा तो क्या रिटर्न करेगा? a प्लस बी. तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? Sum. 7. 7 5 प्लस 2, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो चुका था तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई. और जब इसमें तुम इस मेथड को कॉल करोगे तो ये a और b की वैल्यू को ऐड कर देगा. सो इट विल बिकम 7. रोजी यस. रोजी इसमें तो फिर मतलब मतलब जैसे ऊपर अगर हमने कुछ इनिशियलाइज किया उसका तो कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि लास्ट में तो कंस्ट्रक्टर ही कन्वर्ट कर देगा हाँ, सब कुछ. तो इसलिए जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू तुम भरोगे, अगर यू हैव अ ऑप्शन कि तुम चाहो तो ये कंस्ट्रक्टर तुम नहीं लिखो. ओके, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो so then whatever value you will give, that value will be assigned. Is this clear? यस प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर का फायदा ये है, मान लो तुमको शुरू में सबको 0 0 वैल्यू देनी है. ओके, तो बार बार तुमको 0 नहीं लिखना पड़े, उसके लिए एक बार 0 लिखो यहाँ पे. तो जितनी बार तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे a और b को वो ऑटोमेटिक 0 वैल्यू दे देगा. लेकिन प्रोजेक्ट अगर मैंने पहली बार में ऊपर यहाँ int a इक्वल टू 7 फिर int b इक्वल टू 8 लिखा और फिर उसमें int सम में सम किया, तो उसके बाद तो एक बार तो ये वैल्यू निकालेगा ना 7 प्लस 8 की. हाँ, तो उसके लिए फॉर दैट इफ यू दैट इज द केस, देन इनसाइड दिस मेथड you have to write a is equal to 7, b is equal to 5. तो ये ऊपर वाले नहीं लेगा वैल्यू अगर मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे int नहीं, a और b? तो ऊपर तो लेगा, पर अगर तुमने ऊपर लेगा, लेकिन तुमने अगर कंस्ट्रक्टर तो कॉल करना ही है, ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो a को 5 और b को 2 कर देगा. ठीक है. लेकिन प्रजी जब यहाँ int जो सम ऊपर वाला लिखा है आपने, यहाँ पे जो int सम लिखा है, हाँ ये नीचे आओ, नीचे माउस नीचे करना यहाँ पे. हाँ, हाँ. इसके बाद तो पहले वो पढ़ेगा कि इनिशियलाइजेशन a की क्या हो रही है, फिर b की क्या हो रही है, हाँ. फिर int सम पढ़ेगा, फिर उसके अंदर ब्रैकेट में जाके देखेगा तो ब्रैकेट में तो a प्लस बी रिटर्न लिखा हुआ है, तो पहले वो रिटर्न कर देगा ना वैल्यू, फिर नीचे कंस्ट्रक्टर पे आएगा. नहीं 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 नहीं, ये उस कंस्ट्रक्टर पे, जैसे मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन तुम कहीं भी लिखो सीधे वो मेन पे जाता है. ओके, मेन फंक्शन तुम कहीं पे भी लिखोगे पहले कंट्रोल मेन पे जाएगा. उसी तरह कंस्ट्रक्टर तुम चाहे कहीं पे भी लिखो, जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अच्छा. ओके. जी प्रदीप. Yes, Project. So now you see, when you create a class, मान लो हमने एक क्लास बनाई, क्लास ABC. और इस क्लास के अंदर तुमने लिखा int a, int b, and then you have a method, let's say int sum, return a plus b. Then you have another method int product, and inside you have written return a into b. Okay, so इस क्लास के अंदर, this is your class and it has how many data members are there in this class? Two data members. Project A and B. So these are two data members, A and B. Okay, data members. And how many member methods are there? Project 2. Two member methods are there. Sum or product. Okay.
So these are your member methods. Now I am writing the main function separate. Okay, I am writing here main function. So I'll not write the whole thing. I'll just write जी main. किसी भी चीज को कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए उसके आगे ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है, नहीं तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर। कौन सा ब्रैकेट? ये? हाँ हाँ नहीं, वो कंस्ट्रक्टर नहीं, मेथड के लिए भी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेथड। किसी भी मेथड को बनाने के लिए ये पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगता है आगे। Okay. So now you have written this main method. प्रभुजी, तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया? मतलब इसमें अभी मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कहीं पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। देखो, क्योंकि क्लास का नाम क्या है? एबीसी। मैंने एबीसी नाम का कोई मेथड बनाया है इसमें? नो प्रॉब्लम। बनाएंगे प्रोजेक्ट। मेन मेथड के अंदर नाउ आई विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट abc dot then o is equal to new abc abc. Okay, so now you see what is happening. I have not created any constructor here. Okay, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया नहीं, स्टिल यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, ABC का कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रोजेक्ट अगर हम लोग इसके बाद अगर कोई चीज जैसे ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, तो प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगी। हाँ, जो वैल्यू तुम ए और बी की डालोगे वो वैल्यू इसमें इट विल एक्सेप्ट दैट वैल्यू। Okay, so this default constructor, what it will do, it will create the object. It will create this object. तो जब तक तुम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, देखो क्लास तो तुमने बना लिया, ठीक है, जब तक तुम ये लिखोगे नहीं ABCO, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तब तक मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व नहीं होगा। ओके, इन मेमोरी यू विल नॉट गेट एनी स्पेस। जैसे तुम जब लिखते हो INTA, जब INTA लिखते हो तो कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी में एक A नाम का जाता है। इसका कितना वो होगा, साइज कितना होगा इसका, इस मेमोरी A नाम का ये मेमोरी स्पेस बन गया, रिजर्व हो गया। और ये कितना साइज का होगा, इसके लिए कितना साइज रिजर्व किया जाएगा? इंटीजर के लिए कितना साइज रिजर्व होता है? 32 नहीं, 32 बिट्स होता है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी तुम डाटा ए के अंदर डालोगे यहाँ पे वो स्टोर होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो टोटल कितनी बिट्स हो गई इसके लिए? 32 बिट्स। ओके, अगर तुम लिखते हैं यहाँ पे कैर बी, तो मेमोरी में एक सेल रिजर्व हो जाता, कितने बाइट का? 2। हाँ, 2 बाइट। 16 बाइट। 2 बाइट का एक मेमोरी सेल रिजर्व हो जाएगा और इसके अंदर तुम कोई भी कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, so this happens in memory when you write INTA and char b. Now you see what happens when you write this statement, ABCO new ABC. So this ABC, you have already learned that class is also called composite data type. ये तो पढ़ा है ना, नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डाटा टाइप। कंपोजिट डाटा टाइप में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स, क्लास, हाँ क्लास एंड
योर एरे, ओके। सो क्लास इज कॉल्ड इंटरफेस। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ABC टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी तक जब तक तुमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था तब तक मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व नहीं होगा। जब तुम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ABCO, तो यानी कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा कि मुझे ABC टाइप का एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा O, ठीक है, उसका नाम होगा O। तो ABC टाइप का मेमोरी स्पेस का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर में एक ऐसे बड़ा सा मेमोरी स्पेस रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, और एक उसमें उसके मेंबर होंगे, यहाँ INT A, INT B और यहाँ पे मेथड होगा सम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और इसका इस पूरे ब्लॉक का नाम होगा O, दिस होल ब्लॉक इज O, तो is clear? So when you write create an object, then this memory space is created. Before that, memory space is not created. So now what happens if you create another object? अगर तुम इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लो ABCK is equal to new ABC, हमने ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। तो अब क्या होगा, एक दूसरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और यहाँ पे होगा INT A, INT B एंड दिस फंक्शन, इसके लिए अलग से ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है, मेथड को दोनों कॉमनली शेयर करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे मेथड सबके लिए कॉमन होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? कौस्तुभ्य, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस प्रोजेक्ट अगर हम लोगों ने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ प्रोजेक्ट चला दिया तो प्रोजेक्ट कुछ वो नहीं हो जाएगा प्रोजेक्ट? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो ये O नाम का ऑब्जेक्ट है, ये K नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो O के मेमोरी स्पेस को कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे O.A, O.A इज इक्वल टू 6, यानी कि ये 6 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ऑब्जेक्ट O की यहाँ पे स्टोर होगी। अगर तुमने लिखा K.A इज इक्वल टू 5, तो ये 5 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, ये K नाम के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर तुमने लिखा O.B इज इक्वल टू 2, सो ये यहाँ पे स्टोर होगी, एंड O.K इज इक्वल टू -2, तो ये यहाँ पे स्टोर होगा। प्रोजेक्ट इसका मतलब ये लोग अगर अलग अलग देंगे प्रोजेक्ट आउटपुट? प्रभु जी ये होना चाहिए ना K.B। हाँ सर, यस सॉरी K.B यहाँ पे होना चाहिए K.B। दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए। तो K.B भी ये -2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पर ये जो मेथड्स हैं इनके लिए अलग से मेमोरी स्पेस नहीं क्रिएट होता, ये एक बार क्रिएट हो जाते हैं, फिर तुम चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लो, इसका नाम हो गया M, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लो, इसका नाम हो गया N। तो ये सारे मेथड, सारे ऑब्जेक्ट्स सेम मेथड को शेयर करेंगे, मेथड के लिए एक ही जगह सबके लिए कॉमन सभी का मेथड। हाँ, तो अब जैसे तुमको ऑब्जेक्ट O के लिए मेथड को यूज करना है, तो तुम क्या लिखोगे, O.sum, O.sum लिखोगे तो O के लिए मेथड कॉल होगा, ठीक है। अगर तुम लिखोगे K.sum लिखोगे तो ये K के लिए मेथड कॉल होगा, यानी O.sum का आंसर क्या होगा 8, K.sum का आंसर क्या होगा 3। डिफरेंस समझ में आया? ये मेथड सेम है, पर अगर तुम लिखोगे O.sum तो ये O ऑब्जेक्ट का डाटा यूज करेगा, ये जो सम मेथड है ये कौन सा डाटा यूज करेगा, ऑब्जेक्ट O का।
अगर लिखोगे के डॉट सम, तो ये जो सम मेथड है ये के ऑब्जेक्ट का डाटा यूज करेगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो जी सम प्रोडक्ट वाला ही बता दो, ये टेबल वाला लास्ट में जो भी आपने बताया, ये वाला ना सम प्रोडक्ट। तो देखो जब तुमने एक क्लास बनाई तो ये दो मेथड क्रिएट किए, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुमने ये मान लो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ओ एंड के, सो जब जितने भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने सेट ऑफ डाटा मेंबर्स बन जाएंगे। ओ का डाटा मेंबर ये हो जाएगा और के डाटा मेंबर, इसका भी नाम ए होगा, ए एंड बी, और इसका भी नाम ए एंड बी होगा। ओके, बट दिस you will refer as o dot a, o dot b, and this you will refer as k dot a and k dot b. तो जी इनमें से एक्सेप्ट दोनों होगी, हाँ एक्सेप्ट दोनों होगी या फिर हाँ, कोई एक ही? दोनों एक्सेप्ट होंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम किसको यूज करना चाहते हो। जी अगर तुमको इसको यूज करना है के वाले को, तो तुमको लिखना होगा के डॉट ए। अगर ओ को यूज करना है, ओ वाले को लिखना है, तो लिखोगे ओ डॉट ए। ठीक है। ऐसा हाँ जी। और अगर तुमको के लिए ये सम मेथड को यूज करना है तो तुम लिखोगे के डॉट सम, और ओ के लिए यूज करना है तो लिखोगे ओ डॉट सम। तो ओ डॉट सम का आंसर होगा 8, क्योंकि ओ के जो डाटा मेंबर्स हैं वो यूज होंगे 6 and 2, और के डॉट सम का आंसर होगा 5 - 2 3। ठीक है। okay. So now we'll just see an example and just show. So I heard the Akshay was saying that there is a book for model paper of Arihant publication. So you can ये हमारे पास तो वो जो हमारे पास है पुराने जो पिछले साल वाली थी वो वाली भी है। अच्छा, वो सोल्यूशन नहीं है, Solutions प्रैक्टिस वाली भी है। पेपर्स हैं, उसमें मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस वाली भी है ब्रो जी मेरे पास। हाँ, सॉल्यूशंस वाली, दैट्स ऑल राइट, बट दैट इज अ मॉडल पेपर, so you can purchase that. अरिहंत पब्लिकेशन का है, आई विल पोस्ट, या तो किसी को अक्षय से कांटेक्ट हो तो अक्षय से पूछ सकते हो। अक्षय परमार नाम ब्रो जी? अक्षय परमार, grade 12. ठीक है ठीक है। So they are saying that they used in their class 10 in the last moment and it was very helpful, it was very nice. प्रभु जी गूगल पे होगा, गूगल पे भी तो बुक हो जाती है, मिल जाती है। हाँ, गूगल पे, वही गूगल पे तुम सर्च करोगे अरिहंत कंप्यूटर मॉडल पेपर ICSC, so it will show and you can get from Amazon. Yes, Anirudh, what is the question? So I'll just try to show you a small program which will show this thing. Okay, you can see on the screen, this is a class का नाम है वेलकम जावा। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा
before the outside the main method. So यहाँ पे मैंने is going very slow. So for constructor I will write welcome, same name as a class. So welcome underscore Java, then parenthesis, and then I'll write here a is equal to 6 और इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। क्लास हाँ चल रहा था, यस बताइए प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जी I had sent to okay. No प्रभु जी। यस प्रभु जी। इस प्रोग्राम में प्रभु जी ने दोनों यूज करें क्या, दोनों पैकेज? Okay, yes. Yes, I'll follow today and I'll tell you. Hare Krishna. वेदांत, Yes, please. ये प्रोग्राम नितिन का है। Yes, please. ग्रेड 9 वाले का है। After this, one class is there and this right now. लेकिन लग नहीं रहा मुझे बता रहा है, ये लग तो नहीं रहा मुझे देखने में। बाकी हो भी सकता है भाई, क्या पता, साल खत्म होने वाला है, आता तो होगा। Okay. और कोई बताना? Okay. और गलत सा लग रहा है। Yes, Priji, I have seen.